तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी दैट आप सब लोग जुड़े हैं। तो हम आज ना दो तीन चीजें आपको एक ये करना था। हरे कृष्णा, इंट्रोड्यूस करेंगे आपको। तो उसके पहले जय राधा माधव सबको मालूम है ना? जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज यशोदा नंदन व्रज जनंदन, यशोदा नंदन व्रज जनंदन, जमुना तीरा जमुना तीरा
Vishnupada Paramhamsa Parivajakacarya Stotra This Divine Grace Vaishnava Arvinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Vishnupada
परमहंस परिजकाचार्य स्तोत्र सदस्य डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रील प्रभुपाद की, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की, प्रेम से गौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की, श्रीमद् भगवत गीता की, हृदय गौर प्रेमानंदे, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Jnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Dadati Swapadantika Vandeham Shri Guru Shri Yuta Shri Guru Vaishnavansya Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarini He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopikakanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gaurani Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhasute Devi Pranamami Haripriye Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhyevacha Patitana Pavebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. So आपके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप था जो हमको दिखाने का था आपको. How long is that actually? 20 minutes. 20 minutes. Okay. So just close this thing, please. Keep it blank screen for the time being. तो हमारे साथ एक्चुअली कुछ गुरुकुलीज है जो हमारा मायापुर में गुरुकुल है. तो हमारे पास है कृष्णदास एंड बलराम दास. तो ये मायापुर गुरुकुल से है और ये एक्चुअली सीताराम प्रभु के बेटे हैं जिन्होंने सीताराम प्रभु जिन्होंने एक भिवंडी प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू किया था जो भिवंडी से लोकल है. तो उनके बेटे हैं और इन्होंने गुरुकुल में 8-9 साल तक पढ़ा है. तो कुछ ट्रेनिंग उनको भगवत गीता वगैरह का ट्रेनिंग जो है दिया जाता है. तो आप क्या थोड़ा सुनना चाहेंगे उनसे? So we can call for Krishnadas and you can just give in English. You can speak. सब समझते हैं ना English? You can stand and also speak, no problem. In mic is this only, right? Yeah. You can just wear it, it will be more comfortable. One second. He's presenting on Bhagavad Gita, the shloka. Pasam chujena nihata vihaya navani grahanati naroparani tada sharirani vihaya jirnani anyani sanyati navani dehi. As a person puts a new garment, giving up the old and useless ones, similarly the soul accepts a new body, giving up the old and useless ones. So Krishna is saying here that when a person leaves the body, it's not like he's finished, there's no more. He takes a rebirth just as we put a new garment, and when he gets dirty or old, we automatically take it out and put a new one on. But it's a cycle. So according to our karma and what good deeds we do or bad, and at that time we get a new body and whatever we do.
and this cycle goes on. We do good things, then according to that we get a body just as clothes. We change every time it gets old, and a sober person is not bewildered by such changes. So, as devotees, our goal is not to take rebirths and continue going through this cycle. We should all try go back to home, back to Godhead. And for that, we need to remember Krishna. Antakala Chamamema, at the time of death, whatever we remember, we will attain. So, like Bharat, Jada Bharat, at the time of death, he remembered the deer which he was taking care of. So, he attained a deer body in his next life. So, we should all try think of Krishna at the time of death, and we can go back to him. Otherwise, we will go through the whole cycle again and suffer in this material world. Hare Krishna. So I'll say the story of Jada Bharat. He was a king he retired, he went to the forest. He was trying to meditate so he can go back on Krishna. So while he was meditating, a deer who was pregnant, she was drinking water, and a tiger roared. And out of fear, she jumped, and the baby came out. And out of fear, the deer mother died. And Jada Bharat came. She saw the deer floating in the water. To save her, he picked the deer up, took care of him, and then he was taking care of him very nicely. And one day he got lost. So he was so much stressed that where did the deer go? Where did the deer go? Because he grew up and left. So he was very stressed, and then at the time of death, he remembered that he was thinking of the deer. And he left his body and attained a deer body in his next life. In the deer body, he could remember his past life that he was, because of that, he got a deer body. He would go to the Brahmanas, hear them speaking about the Lord and everything. The next life, he was born as son of a Brahmana who was like a little bit Avadut type. He would be walking around, and one day some, those forest people, they took him, thieves basically, they took him to offer to Ma Kali. And that Kali Devi came out and saved him. And then he was walking around in the streets, and the king of that place, he was going, and he needed one person to carry his palanquin. So he was doing that, and he was walking very weirdly because there was ants there. He was so conscious that he didn't want to crush the ants even. He was walking in such a weird way, and the king got very angry at him and started screaming. And after some time, he realized that he's a devotee of the Lord. He's so conscious that he's even caring for the ants. Then he practiced his sadhana very nicely, and at the time of death, he remembered Krishna and went back home, back to God. सो आज हमें लगा थोड़ा अलग फॉर्मेट करेंगे. नॉर्मली आपका क्लास होता है जिसमें कुछ थीम या टॉपिक रहता है. यू यूज पीपीटी आल्सो समटाइम्स. ऑलराइट. सो आज थोड़ा आपको वीडियो दिखाना है. एक गाना हमारा भक्त है जिसको प्रीवियस लाइफ मेमोरीज जिसको याद था. अब सबको मालूम है राइट, गीता में सबसे पहला जो लेसन है वो क्या है? फर्स्ट लेसन इन भगवत गीता, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल. राइट और नॉट? एक बार ना एक लड़का था, वो इतना प्यार में पागल हो गया था कॉलेज में. तो उसने बोला कि वो लड़की को बोला, यू आर नॉट द बॉडी, यू आर माई सोल. लड़कियों को प्रीचिंग कर रहा था तो ऐसा हो गया उसका हाल. तो पॉइंट ये है कि वी आर नॉट द बॉडी, वी आर द सोल. जब भी हम मर जाते हैं, सारी भाषा में यही बोलते हैं. क्या बोलते हैं? ते वाला सोडून गेला, छोड़ के चला गया. गुजराती में भी यही बोलते हैं, छोड़ी ना गया. इवन साउथ इंडियन लैंग्वेजेस दे से द सेम थिंग. तीरकोंडा, चेनीपोयारू. रशियन में भी यही बोलते हैं, ओरशान पोंडाल. एक ही चीज बोलते हैं. व्हाट इज इट? दैट ही इज नो मोर, छोड़ के चला गया, ही इज गॉन. हु हैज गॉन? बॉडी तो उधर है. सो सोल. तो ये जो है ना, ये भगवत गीता का सबसे महत्वपूर्ण लेसन है, जिसके द्वारा आप एक्चुअली सब चीज समझ सकते हैं दुनिया की. सो दैट यू आर नॉट द बॉडी, यू आर द सोल. आप अपना खुद का स्ट्रेस भी इजीली मैनेज कर सकते हैं.
जब आप ये समझ जाए कि आप ये बॉडी नहीं सोल है, तो ये जो हम चैंटिंग करते हैं ना हरे कृष्ण महामंत्र, इससे आपको रियलाइजेशन आ सकती है। लेकिन ये सबका प्रूफ क्या है? प्रूफ, अच्छा गीता में और 2-3 चीज बताइए, कि आप ये नया बॉडी कैसे मिलेगा, वो डिसाइड कैसे होता है, किसी को मालूम है? हाँ, 2 चीज रहता है, एक कर्मा है और दूसरा हाँ क्या, डेथ के बाद क्या? डिजायर। हाँ, ये यम यम वापी स्मरण, आप ये वाला श्लोक रिपीट कर सकते हैं, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। जो आप सोचेंगे वैसा वैसा, जैसा जैसा सोचेंगे वैसा वैसा आप शरीर मिलेगा। तो इन सब का प्रूफ क्या है? तो ये कुछ हफ्तों पहले ये एक हमारे डिवोटी थे एक मंदिर में, इनको पूरा एक्चुअली अपने पूर्व जन्म का, पूर्व इन द सेंस दैट वो भक्त बनने से पहले उनके साथ कुछ घटनाएं हुई जिसके बारे में वो बता रहे हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये काफी कुछ चीजें प्रूव करता है। तो उसके बाद फिर हम ना चर्चा करेंगे उसके ऊपर, ठीक रहेगा? दिख रहा है आपको? Krishna, I'm going to speaking from the Bhagavad Gita, second chapter. Jayatayam bhutva bhavitavana bhuya adonitya shashvatoyan purano nanyatehanyamana shri. For the soul, there is neither birth nor death at any time. He's never come to being, does not come to being, and will not come to being. He's unborn, eternal, ever existing, and primeval. He is not slain when the body is slain. So here Krishna is saying that the body doesn't come into being, never comes to being, never takes a birth. Which take birth is the body. The body takes birth. The body has 6 kinds of transformations. First one is the birth. Second, remains for some time. Third, grows. Fourth, produces some effects. Fifth, gradually dwindles. Sixth, death. These are all these are for the body. The soul is in the body, which the body feels everything, but the soul it doesn't feel anything because the soul is like, you can find out like the soul is the consciousness in the body. And there's no consciousness, the body is just like a cloth in the floor. It's like Jatasai Dhruvam Dhruvam Janma Metasija. One who has taken birth is sure to die, and after that one takes birth again. For example, for this is once there was a king Chitraketu. He had many wives, but he didn't have a son. So once he met Angira Muni, and then Angira Muni gave him a mango. He gave it to his wife. The wife gave a child, and Angira Muni said, "This will be the cause of your happiness and your lamentation." He didn't care much of the lamentation. He was just happy that he's going to get a son. So he got the son, and he had many wives. So other wives got envious. So they wanted to kill the son. So everyone gets equal, everyone gets equal respect. So they in the food of the child they put poison. The child ate it, and the mother was outside. The child was sleeping, and then he didn't wake up. The mother sent some servant to call her child, but she wasn't waking up. So then the mother and father came there, started crying. And Angira Muni with Narada Muni came there, and they said Narada Muni put some mystic powers, and then the child woke up. Then the child said that he started explaining like we're not the body, not this. And then the father was preaching to the father, and then the child laid down and the soul went away. The father understood everything. He also renounced the kingdom and left to the forest, and to practice this yoga. Hare Krishna. Okay, thank you for that. Are we on or not yet? Alright. तो इनका स्टोरी जो था, it was about चित्रकेतु महाराज का एक स्टोरी है, भागवतम में आता है। तो इसमें कैसा है ना कि इसका बेटे का नाम चित्रकेतु महाराज की बहुत सारी पत्नियां थी,
बेटा नहीं था। फाइनली उनको कृपा से बेटा मिल जाता है, लेकिन बेटे का नाम होता है हर्ष शोक, क्योंकि वो बोला कि हर्ष मतलब हैप्पीनेस का भी कारण बनेगा और शोक का भी कारण बनेगा। क्या होता है ना, बाकी सब कोवाइफ जो रहती है, जो हर्ष शोक की माँ है वो तो खुश है, लेकिन बाकी सब बहुत ईर्ष्या करती है, क्योंकि अभी किंग उसको सारा टाइम और एनर्जी अटेंशन देता है। तो इन्होंने क्या किया, हर्ष शोक के खाने में कुछ पॉइजन डाल दिया तो मर गया। तो सब तो ये तो चित्रकेतु तो बिलीव नहीं कर पा रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ, एंड वाइफ भी। तो तभी ना इतने शौक में थे। तो वहां पर ये नारद मुनि और अंगिरा ऋषि दोनों आते हैं, और नारद मुनि अपने शक्ति से क्या करता है, वो रिवाइव कर देता है लड़के को जो मर गया है, सोल चला गया है, और एक कोई सोल को लेकर एम्पावर कर देते हैं। और फिर वो फिलॉसफी बोलता है कि आप क्यों रो रहे हैं, तुम माता पिता बोल रहे हैं हम तुम्हारे माँ बाप है, तुम मर गए थे इसलिए। बोले माँ बाप ये जीवन के पूर्व जीवन के कौन से थे, कौन से माँ बाप की बात कर रहे हैं आप? हर जीवन में हर शरीर मिला है, उसके साथ माँ बाप मिला है। तो he is trying to explain them the science of the soul। जब उनको मालूम पड़ता है ना, तो धीरे धीरे करके डिटैचमेंट आता है, क्योंकि उनके बेटे के ही मुख से सुन रहे हैं कि एक्चुअली आप शरीर नहीं है, आप बॉडी है, आप बॉडी नहीं आप सोल है। तो इस तरह से उनको रियलाइजेशन आता है। फिर बाद में जो है चित्रकेतु और उसकी वाइफ एक्सेप्ट कर लेते हैं अपना भाग्य और अपना कर्म। तो इसमें भी ये पॉइंट आता है कि किस तरह से आत्मा जो है वो शरीर बदलती है, और ये किस तरह से डिसाइड होता है, वो है अपना डिजायर एंड कर्मा। ऑलवेज रिमेंबर दिस। नाउ लेट अस हियर समथिंग फ्रॉम दिस डिवोटी जिन्होंने कुछ अनुभव किया था इस विषय में। तो रहते थे मर गया, अभी बचेगा नहीं, पूरा शरीर पूरा ये सब फूक गया। 11 केजी में बचना लगभग नामुमकिन था। तो उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काला भैंस है ना, वैसे उस तरह के था, और आंखें पूरा लाल लाल और गोल था। आपके साथ क्या है, हिंदी में बात कर रहे थे? हिंदी में बात, मैं उनको हिंदी में पूछा तो उन लोग हिंदी में से। हाँ, मेरा चीज सुन के काफी लोग रोने लगे। मैं मन खुश हो गया, मैं मरेगा। हरे कृष्णा। सभी दर्शकों को हमारे इस पॉडकास्ट में स्वागत है। और हमारे साथ हमारे भक्त है इस्कॉन के सीतानाथ प्रभु जी, और हमारे सभी जितने भी धर्म है, सभी धर्म में हमारे कुछ को विश्वास है, किसी को विश्वास नहीं होता है कि वास्तविक में क्या हम लोग जब मर जाते हैं तो क्या सच में यमदूत आते हैं, या हम लोग मरने के बाद क्या यमराज के लोग मिल जाते हैं। तो इसका जो प्रश्न की उत्तर देने के लिए हमारे प्रभु जी का जो नियर डेथ एक्सपीरियंस है वो आपको बताएंगे। और प्रभु जी का थोड़ा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। प्रभु जी जब इसको आने से पहले जब एक बॉम्बे वाली कंपनी में काम करते थे, वो सूरत में अपना जो कॉन्ट्रैक्ट लिया था वहाँ पे काम करते थे, पाइपलाइंस का काम, पानी डालने, पाइप डालने वाला। तो प्रभु जी वहाँ पे जब काम करते थे, प्रभु जी के साथ एक एक्सीडेंट हुआ था इलेक्ट्रिक वायर के साथ। प्रभु जी 11,000 kV का जो वोल्टेज था, वहाँ पे जो क्रेन टच हो गया, और फिर प्रभु जी का जो हाथ है सब चल गया था, हाथ पे पूरा बॉडी का 50-60%। तो उस समय प्रभु जी कोमा में थे। जब प्रभु जी जब आए कोमा से, जब वो होश आया हॉस्पिटल में, क्या ये युवराज के दूतों को देखे थे, इस सब के बारे में प्रभु जी बताएंगे। तो प्रभु जी कैसे मुख से सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपका हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। वहाँ पे मैं सूरत गया था, डिंडोलिनाका में। 26 सितंबर था, डेट 2010 की बात है। अभी उससे 2 दिन पहले मुझे छुट्टी मेरी मंजूर हो गई थी। मैं छुट्टी एप्लीकेशन दिया था कंपनी को, लेकिन वो छुट्टी से मैं वापस जब सूरत से मुंबई आया छुट्टी लेने के लिए, तो हमारा एक कॉन्ट्रैक्टर था, सुपरवाइजर, उसने मुझे फोन किया, संतोष आपका एक काम है, आप करोगे क्या? बोला मैं तो अभी छुट्टी में हूँ, बताओ। तो उन्होंने बताया कि 35 से पाइप है, लोखंड का पाइप, उसको शिफ्ट करना है एक जगह पे। तो मैं बोला ठीक है करूँगा, अगर उसका पैसा मैं डबल दूंगा आपको। तो इसलिए मैं चला गया वापस। जब वापस आया तो मुंबई से सूरत आने के लिए बस से मैं टिकट निकाला, फिर 2 स्टॉप आगे जाके फिर स्टॉप से उतर गया, बस स्टॉप से।
फिर वापस आया, फिर देखा, मतलब मेरा दिमाग में ऐसा कुछ पहले कभी ऐसा हुआ ही नहीं था, ऐसा क्यों हो रहा है मैं वही सोच रहा था। बाद में थोड़ी देर फिर सोचने लगा, फिर दूसरे बस में चढ़ा, फिर स्टेशन गया, तो सवेरे काम चालू होने वाला था, तो 27 पाइप हम लोग लगभग शिफ्ट कर चुके थे और बचा था 8 पाइप, और 8 पाइप को शिफ्ट करने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगता था। तो मेरे साथ जो पार्टनर था, जो ट्रेन का ड्राइवर था, उसने बोला कि आप अभी चलते हैं, थोड़ा नहा धो के खाना खाएंगे, आराम करेंगे, उसके बाद आएंगे काम करेंगे। मैं उसको मना किया, नहीं अभी कर लेते हैं। तो ऐसा हुआ, तो वही 28 नंबर पाइप, वो पाइप को ऐसे में दोनों हाथ से ऐसे पकड़ा था, तो उस समय वायर ऊपर था, इलेक्ट्रिक का वायर, और ट्रेन उसके नीचे से हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। और अचानक तो छोटे छोटे बच्चे आ गए उस समय, तो बच्चे लोगों को ना लगे इसलिए मेरा ध्यान वायर पे नहीं गया, तो मैं बच्चे लोगों पे मेरा ध्यान था। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पैर ऊपर उठ रहा है। तो इसका मतलब वो करंट लग चुका है उस समय में जब आपका पैर ऊपर जा रहा है? तो नहीं, मुझे करंट लगा नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा है मैं अभी खींच रहा हूँ ऊपर। अच्छा। तो ऐसे एक हाथ पकड़ा था पाइप को और एक हाथ से ऐसा, जब ऊपर उठा तो दोनों हाथ ऐसे पकड़े थे, मैं लटक गया। उसके बाद मुझे क्या हुआ मुझे खुद पता नहीं, मैं कैसे नीचे गिरा, कौन गिरा वो याद नहीं है। जब होश में आया तभी थोड़ा टाइम के लिए होश आया था, तभी ऐसा लगा कि मेरा राइट हैंड है ही नहीं मेरे शरीर में। उसके बाद एम्बुलेंस आया, मुझे एम्बुलेंस में भर्ती करके लेके गए। उसके बाद मेरा होश ही नहीं था, 3 दिन के बाद होश आया। जब होश आया हॉस्पिटल में था, मेरा पट्टी सब बांधा था, ऐसा था। बाद में जब आंख खोला तो मेरे सामने दो एक अजीब दिखने वाले लोग थे, जैसे उनकी आंख जैसे पहले सूर्य किरण की तेज जैसा होता ना लाल, वो आंख बड़ा आंख था। तो कितना समय था उस समय, रात को था या दिन में? नहीं, रात को था, लगभग 10:30-11 ऐसा कुछ था। तो आंख जो था जैसे सुबह का सूरज का जैसे लाल वैसा था। लेकिन उन लोगों को देख के मैं डर गया, नहीं कौन लोग आ रहे, और उनका मुंह ऐसा था कि जैसे काला भैंस है ना, वैसे उस तरह के था, और आंखें पूरा लाल और गोल था। और वो क्या सींग भी था? हाँ, ऐसा सींग था बड़ा। और मुझे देख के वो लोग हंसने लगे। मैं उनको पूछा आप कौन हो, कहाँ से आए हो, ऐसा क्यों हंस रहे हो? वो लोग बोले कि हम यमदूत है, हम तुझे लेने आए। तो हॉस्पिटल में हो रहा है? हॉस्पिटल में आपके साथ में दूसरे भी पेशेंट होगा साइड में? हाँ, वो लोग बहुत सारे पेशेंट थे, लेकिन वो लोग सोए थे। वो 2 जन सिर्फ मुझे ही दिखाई दे रहे। अच्छा। तो मैं इधर उधर देख रहा, क्योंकि मैं उस कंडीशन में था ही नहीं, इधर उधर देख पाऊँ। फिर बाद में वो लोग आप लोग कौन हो, वो लोग जब बताया कि हम यमदूत है, आप यहाँ क्यों आए हो? ना तुझे लेने आए हैं। तो मैं उनको बोला मुझे क्यों लेने आया हूँ? तो उन्होंने बोला तूने ऐसा पाप किया है तो उसका फल तुझे अभी मिलेगा, और मिलने के बाद ही हम तुझे लेके जाएंगे। ऐसा कुछ मैं उनको पूछा कि दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कोई इंसान को मारते हैं या जानवर को मारते हैं या कुछ बलात्कार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती ऐसा कुछ करते हैं, मैं तो उसे कुछ किया ही नहीं, तो मुझे ही क्यों मिला सर? तो वो लोग बोले तूने बहुत कुछ किया है, तो मुझे मैं क्या किया था वो तो याद नहीं था। बाद में मेरे सामने जैसे हम हॉस्पिटल में उसके सामने दीवार था, वो दीवार पे से हमको मुझे पूरा मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जैसे हम हॉल में बैठ के पिक्चर देखते ना, वैसे ही सेम टू सेम मुझे दिखाई दिया कि मैं स्कूल कोई यूनिफॉर्म में था। तभी हमारे स्कूल बच्चे लोग हम लोग कॉम्पिटिशन थे कि एक सांप पकड़ेगा जो उसको एक पालिश बिस्किट मिलेगा। वो हमारे घर के बगीचे में पिछवाड़े में वहां पे दो सांप थे, मैंने दोनों हाथ से दोनों सांप को ऐसे पकड़ा था। एक सांप मेरे हाथ से निकल गया, दूसरा मैं सोचा कि ये सांप को कहाँ रखूं। तो गांव में हम लोग चूल्हे में मम्मी चूल्हे में खाना बनाती थी, वो चूल्हे में देखा तो आग तो है ही नहीं, आग होता तो मैं डालता ही नहीं क्योंकि वो सांप मर जाता। अंदर असल में अंदर आग था, मुझे दिखा दी, ऊपर में राख था। हाँ, अभी तो मैं डाल दिया। उसके डालने के बाद जैसे हम लोग जैसे चना भूनते वो आवाज करते हैं ना, वैसे आवाज किया। आवाज करने के बाद मैं उधर में दूसरा सांप ढूंढने चला गया। बाद में थोड़ी देर बाद आया, वो पूरा बांस मारता था,
मेरी मम्मी ने आया वो सांप को निकाला, अभी मुझे थप्पड़ मारा, बहुत कुछ मारा। तो बाद में हाँ थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारने के बाद वो ऐसे ही आप देख रहे हैं उसमें? हाँ उसमें देख रहा। आपको याद नहीं था? नहीं याद है, यमदूत आपको दिखा रहे? हाँ वो लोग दिखा रहे थे, मुझे पिक्चर में जैसे देखा। बाद में वो लोग बोले देखा वो सांप को जलाया था, इसलिए वो सांप ने तुझे श्राप दिया था कि उसने श्राप दिया कि मेरा शरीर इसने जलाया, अभी भगवान करे इसका शरीर भी जले। तो उसका श्राप मुझे लग गया, इसलिए मेरा शरीर जल गया। तो ऐसा कह के वो लोग चले गए। अच्छा। ये लोग बाद में चौथे दिन फिर आए रात को, सेम दिन का घटना है। हाँ ये तीसरा दिन का, चौथा दिन भी आए। चौथे दिन आए, फिर मैं उनको बोला आप लोग क्यों आए फिर से? ना अभी तुझे और कुछ दिखाना है, बताना है। ठीक है क्या बताना है? तो लोग बोले उन्हें बहुत मतलब मुर्गी को उबल तो फिर पानी गर्म पानी में डाल के उनका चमड़ा निकाला है। तो ये मैं मना नहीं किया, मैं उसको स्वीकार किया, हाँ मैंने किया है क्योंकि याद था। हाँ याद था, मैं मुंबई में किया था। तो एक हमारे दोस्त ने दावत था, वो उसको खाना बनाने के लिए ले गया था। तो वहां पे ऐसे 4-5 मुर्गी को टांग में रस्सी बांध के बोलते हुए पानी में ऐसा डाल के उसको चमड़ा निकाला। तो जब पानी में डालता था अभी मुझे मजा आता था, वो लोग जब छटपटा रहे थे ना तभी मुझे मजा आता था। तो मैं दूसरे को तकलीफ में जब देखता हूँ या मारता हूँ, वो मारने से जितना आनंद नहीं है, वो तड़पते हैं मेरे सामने ना, वो मुझे मजा लगता था, अच्छा लगता था। तो वही जो वो लोग को जितना तकलीफ हुआ वही तकलीफ मुझे होने वाला था। तो बोला आपको? यमदूत दो आए थे। यमदूत जो आए थे मुझे बोले, दो ही आए थे। आपके साथ क्या है? हिंदी में बात कर रहे थे? हिंदी में बात, मैं उनको हिंदी में ही पूछा तो वो लोग हिंदी में। हाँ तो वो जब बोले फिर ऐसे बोल के वो चले गए। फिर अगले दिन सुबह जब डॉक्टर आए, डॉक्टर आने के बाद जो डॉक्टर थे वो नए स्टूडेंट थे, वो ट्रेनिंग के लिए आए थे, वो डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे लेके गए, और मेरे साथ मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने लेके गए और कॉटन और कुछ दिए, ये साफ करने के लिए पैर को साफ करने के लिए गर्म पानी से, वो कुछ काला काला खून था ऐसा। अभी जब बाथरूम में गया तो उसका भाप, गर्म का भाप लगते ही मेरे पास आते मैं बहुत रोता था, चिल्लाता था। बाद में वो डॉक्टर ने कॉटन को गर्म पानी में डाल के मेरे वो पैर में लगाए, वहां पे मेरा साफ किया। जब भी साफ किया तभी इतना तकलीफ, इतना दर्द हुआ, मैं बहुत चिल्ला रहा था हॉस्पिटल में। तो सब लोग मेरा चीख सुनकर बाकी लोग रोने लगे, इतना तकलीफ। बाद में मुझे स्ट्रेचर में लाए, स्ट्रेचर में डाल के ऊपर का जो जला हुआ चमड़ा उसको जैसे ब्लेड से खींच के वैसे फटाक से निकाल दिया। मैंने जैसे मुर्गी का चमड़ा निकाला था, सेम टू सेम मेरा चमड़ा निकाल दिया। और ऐसा नहीं कि 4 लोग मुझे पकड़े थे स्ट्रेचर पे, फिर भी चारों को मैं मार के सीधा नीचे जमीन पे गिरा। और इतना दर्द हुआ, इतना तड़पा, मैं अभी बोलता मेरा रोंगटे खड़े हो गए। तो इसका मतलब कि हम जितना भी जीवों को तड़पाएंगे तो वहमारे पास वो तो फल मिलना ही है, मिलेगा भले इस जन्म में हो या अगले जन्म में, मिलेगा जरूर। तो फिर उसका क्या? फिर वैसे चला गया, फिर कुछ दिन रात को फिर आए। हाँ 5 दिन फिर आए। अभी क्या आए हो, उनको मैं बोलता था, वो लोग बोले अभी और कुछ बाकी है। अभी क्या बाकी है? दिखा अभी तूने बहुत मीन मतलब मैं समझा नहीं, वो लोग बच्ची बोले सीने से उनका सर को पत्थर से मार रहा था। तो उन लोगों को जब तकलीफ होता था ना, वैसा तकलीफ मुझे होने वाला है। और उनका जैसे उनको काट के उनका वो आंत निकाल देता था, तेरा आंत वैसा ही निकलेगा। तो वो लोग दिखाए थे, मैं मना किया तो वो लोग दिखाए। बहुत कुछ किया, नदी में बहुत कुछ किया, पकड़ाई। तो वही अगले दिन वही मेरा ये जो दाहिना हाथ है, इसको काट के वही सब जितना भी खून पानी जो भी था सब मांस सब कुछ निकाल दिया, सिर्फ हड्डी ही बचा और कुछ था। तब तक मेरा कम से कम 60 या 70% मेरा होश ही नहीं था, मतलब इतना हालत खराब हो गया था। अभी मैं सोच रहा था मैं मरना चाहता हूँ, दर्द हो रहा था। तो मैं
ये मरने की बहुत कोशिश की हॉस्पिटल में, ताकि मैं सांस रोक के ऐसा मरना चाहता था। मैं कोई भी भगवान को नहीं मानता था, सिर्फ हनुमान जी को मानता था। और मैं पूरा टाइम हॉस्पिटल में हनुमान को ही पुकारा था। मैं जय बजरंग बली, हर टाइम जब भी तकलीफ होता था बजरंग बली को बुलाता था। तो इतना मुझे ये पता था कि बजरंग बली मुझे शक्ति देंगे। जितना भी जो भी मैं आज तक काम किया है सब बजरंग बली की शक्ति की वजह से, वो सब मेरा अनुभव होता है। तो उसे फिर वो दिन चला गया, फिर अगले दिन फिर आए वापस सेम टाइम पे। वो लोग तब तक बोला, मैं उनको हाथ जोड़ा, मुझे मार दो, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे आदमी लेके चलो। उनको बहुत ही वो लोग हंस रहे थे और कुछ नहीं बोल रहे थे। फिर अगले दिन बोले, उस समय रात को बोले कि आप तूने बहुत सारे जीवों का अंग भंग किया है। कुछ किया ही तो नहीं, इसका हाथ तो काटा नहीं। मुझे पता था कि मैं किसी इंसान को मारा नहीं, लेकिन उन्होंने जीवों का अंग भंग किया है। जीवो मतलब वो तो पता नहीं था, जीव मतलब मैं सोचा था इंसान ही है। तो वो लोग दिखाए कि मैंने बहुत सारे वहाँ देखा कि वो तितली होता है या चिपकली होता है, पतंग होता है, और बहुत सारे बिच्छू, चूहा, इन सब का पूंछ काट के मतलब उसको रस्सी में बांध के ऐसा करता था, मजा आता था उनको। वो सब दिखाए मुझे, सांप का वो सब दिखाए। तभी मैं वो सब देख के पूरा और डर गया, मेरा क्या क्या काटने वाला मेरा राइट हैंड का उंगली काट दिया और राइट लेग का वो भी काट दिया। जो उंगली राइट हैंड का उंगली काटा तभी मुझे दर्द नहीं हुआ, लेकिन राइट लेग का जब अंगूठा काटा ना तभी बहुत दर्द हुआ। उसके बाद फिर अगले दिन आए, मैंने अभी क्या बचा और क्या काट दिया, सब कुछ तो हो गया, अभी मुझे मार ही दो और मैं यमराज से माफी मांग लूंगा। इतना भी हो रहा है, बहुत हो गया। मैंने जो जो पाप किया था आप लोगों ने मुझे दंड दे दिया, आप इस यमराज को बोलो मुझे लेके जाए, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तो वो लोग, हाँ तुझे तो लेने आए हैं। तो जब उनका कुछ लाए थे पत्रिका, कुछ देखे उसमें कि एक ने पढ़ा और बोला, अरे ये तो चमत्कार हो गया। वो बोले नहीं, इसका मृत्यु है ही नहीं। अभी मैं मन तो लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं मन ही मन खुश हो गया, मैं मरेगा नहीं तो क्यों नहीं मरेगा, और आपस में बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरा पूछ रहे हैं, तो बोले नहीं, अरे ये तो बहुत पुण्य काम किया है। मैं तभी सोच रहा हूँ इतना तो कुछ मारा है, इतना तकलीफ दिया दूसरों को, इतना मांस खाया है, हाँ बकरी का ये का सब मांस खाया है, इतना तो पाप किया है और पुण्य क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि पिछले जन्म में मैंने, इस जन्म में तो कोई पाप पुण्य काम किया नहीं था, पिछले जन्म में एक काशी में एक साधु महात्मा की सेवा किया था। वही साधु महाराज ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में तुझे भगवान विष्णु का सेवा प्राप्त हो और तू अच्छा सेवक बने और भक्त बने। तो साधु का आशीर्वाद से, साधु की आशीर्वाद थी। तो वही लोग वही कभी आपको छोड़ के चले गए, वो लोग बताए और मुझे ये भी दिए कि आगे से ऐसा कुछ मत करना। भगवान का उपदेश देखेंगे, हाँ उपदेश देखेंगे, जो भी जितना पाप किया उसका फल तुझे मिल गया, अभी आगे अच्छा कर्म कर और भगवान का सेवा कर। वैसे चले गए, तो वैसे ही हो गया। मैं सोच रहा था हाँ कौन भगवान है क्या है, कुछ है बोल के गए, फिर माइंड में बोल चला था। अभी तक मैं कोई भगवान को नहीं मानता था, कोई है, बाद कभी कभी स्वीकार करता था, कभी कभी नहीं करता था। अगले दिन फिर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया। उसके बाद धीरे धीरे कितना महीना लगा ठीक होने? मैं टोटली गवर्नमेंट और प्राइवेट में दोनों में से 94 डेज रहा हॉस्पिटल में। तो उसके बाद गवर्नमेंट में 8 दिन रहा, 9 दिन में वापस आ गया प्राइवेट में। तब तक मेरा 80-90% चांस ही कम था। सब लोग सोच रहे थे कि मर गया, अभी बचेगा नहीं, क्योंकि मेरा शरीर पूरा सब फूक गया था, कुछ था ही नहीं शरीर में। जब प्राइवेट में आया तभी मुझे
9 बोतल ब्लड चढ़ा मेरे से, अभी जाके मुझे ये ये तो 2010 का बात है। 2010 का। फिर आप इस्कॉन में फिर कैसे जुड़े? इस्कॉन में मैं 2016 में जुड़ा। अच्छा, ये तो प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है कि सभी को मौका दे रहे हैं, हर जगह मंदिर बना रहे हैं। तो ये भी हमको शिक्षा है कि हमको, जिससे प्रभु जी का एक्सपीरियंस ने बताया कि वैसे तो हमको मांस नहीं खाना चाहिए, तो उसका तो फल मिलेगा ही, कि जीव का हत्या हो रहा है, तो इससे बचे। और हमारे जो प्रभुपाद जी के जो मंदिर है, जो प्रसाद हो रहा है, आप प्रसाद भी खा सकते हैं। और प्रभु जी जैसे बताए कि जो अपना एक्सपीरियंस है कि एक्चुअली यमदूत होते हैं, प्रभु जी का देखा हुआ बात है, तो ये सब सच है। शास्त्र मुझे बताया गया, एक्चुअली शास्त्र मुझे बताते वो सच है, कोई माने या ना माने, लेकिन जैसे प्रभु जी एक्सपीरियंस हुआ तो हम लोग भी करेंगे अगर जब वो समय आएगा। इसलिए सबसे बचिए जो पापकारी है, कम से कम जो इसको भक्त लोग जैसे फॉलो करते हैं, जैसे मांसाहार नहीं करना, अवैध संबंध नहीं करना, जुआ नहीं करना और नशा नहीं करना, तो ये सब मत कीजिए। और थोड़ा भजन कीजिए, हरे नाम कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, हरे कृष्ण हो सके तो साधु संग कीजिए और साधु वैष्णव की सेवा कीजिए। मैंने बहुत सारे पाप किए थे, लेकिन वही पिछले जन्म में साधु महात्मा का सेवा किया था, उनकी वजह से एक ही पॉइंट है जो प्रभु जी बच गए, नहीं तो मेरा बचने का चांस ही कम था। सब लोग आशा छोड़ चुके थे, मैं मना, क्योंकि कोई बोलते हैं कि अगर नागराज साहब अगर किसी को डर से शायद बच सकता है, लेकिन 11th केवी में बचना लगभग नामुमकिन है, मैं बच गया। वही साधु महात्मा की कृपा से और उनके आशीर्वाद से आज मैं भगवान का सेवा करने को मुझे मौका मिला है, वैष्णव का सेवा करने को मौका मिला है। इसलिए आप सभी दर्शकों से हमारा निवेदन है कि गलत काम ना करे और जितना हो सके साधु संग करे, भजन करे, भगवान की सेवा करे। हरे कृष्ण। Okay, so questions, कुछ प्रश्न है? Yes, bro, बोले। यहाँ पे उन्होंने दिखाया है कि उनको इसी बॉडी में वो सब होने को मिलता है। अगर तुमने बताया कि अलग अलग लोग हैं, तो उन्हें जो भी एक्टिविटी किया उनका खान निकाल। हाँ, so it's all you know, it's like जैसे पनिशमेंट होता है, जैसे कोर्ट में भी किसी को पनिशमेंट जब सजा दी जाती है, कुछ इमीडिएट होता है, कुछ लॉन्ग टर्म होता है, आप समझ रहे। समटाइम्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट इज देयर, किसी और को सोशल सर्विस का सेवा मिलता है, तो डिपेंडिंग ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द कार्मिक रिएक्शन उस हिसाब से जजमेंट होता है और उस हिसाब से दिया जाता है। तो अगर बहुत इंटेंस पाप किए हैं तो कुछ चीजें ऐसी रहती है जो ये भौतिक जगत में नहीं भुगत सकते, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को ऐसी जगह पर भेजना पड़ता है जहां पर बहुत इंटेंसली वो भोग सके। और ये शरीर का भी लिमिट है ना, अगर आपने कुछ मर्डर किया है फॉर एग्जांपल, तो ये अभी ये शरीर में आप टिट फॉर टैट कैसे करेंगे? एक ही बार में तो खत्म हो जाएंगे आप। लेकिन आप जैसे ओसामा बिन लादेन हो गया, या कोई आप देखो कोई टेररिस्ट हो गया, जैसे ये लोग थे अभी, इन लोग ने मारा ना पहलगाम में, मासूम लोगों को मारा। तो अगर आप ऐसे हत्या, कोई व्यक्ति ऐसे हत्या कर देता, एक दो जन नहीं, मतलब मास में किया है, तो ऐसे व्यक्ति को पनिशमेंट कैसे देंगे? उसको मार के इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ ना। तो इसलिए ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर भेजा जाता है जहां पर बहुत इंटेंस पनिशमेंट मिले, ताकि वो संस्कार जो है माइंड में वो रहे। देखो अगर आप जब छोटे थे तभी हम सबने थोड़ा मार खाया है कि नहीं? घर पे पनिशमेंट सबको मिला है। क्यों मिलता है? क्योंकि हम अगर गलती को अगर सुधारेंगे नहीं वो समय पर, तो फिर बाद में जाकर बड़ा हो सकता है। तो इसलिए वो संस्कार जो है वो टाइम पर मिलना जरूरी है। उसी सेम साइकोलॉजी से यमराज भी काम करते हैं, सेम साइकोलॉजी से कि जीव है गलत काम कर रहा है, उसको पनिशमेंट तो देना पड़ेगा। तो वो संस्कार किस तरह से स्ट्रांगली आए ताकि वो वापस वही चीज ना करे, इसलिए पनिशमेंट दी जाती है। तो अभी सबको अलग अलग डिग्री का पनिशमेंट दिया जाता है, उनकी जो उन्होंने कर्म किया है उसके अनुसार। तो समटाइम्स जैसे किसी ने छोटा मोटा झूठ बोला है या ऐसा है, तो उसको वो लेवल का होता है। किसी ने हत्या की है या हत्यारा बना है, बहुत सारे जीवों की हत्या की, तो उसको वैसा वाला रहता है, राइट। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ द कार्मिक
रिएक्शंस कमिटेड, कार्मिक एक्शंस कमिटेड कर्मा के अनुसार मिलता है। आप समझ रहे हो? तो समटाइम वो इंटेंसिटी सबका अलग अलग रहता है। कुछ चीजें इमीडिएट होती है, कुछ चीजें लॉन्ग टर्म में मिलती है, कोई चीजें उधर जाकर खानी पड़ती है, ये भी है, डिफरेंट डिफरेंट। ओके, कि उन्होंने बताया कि बचपन में उन्होंने मारा, वो तो छोटे थे तब, हाँ, उनको इतना नॉलेज नहीं था, फिर भी उसका रिजल्ट। यस, कर्मा इज लाइक दैट। आप है ना 5-6 साल तक आप बोल सकते हैं कि कोई कर्मा नहीं लगता है, लेकिन 8 साल से तो पूरा लागू पड़ता है। मध्वाचार्य तो ये बोलते हैं कि 8 से लेकर 13 की उम्र में जो आप कर्म करते हैं उससे आपकी 50 लाइफ टाइम आपकी फिक्स हो जाती है आगे। सिर्फ 8 से लेकर 13 की उम्र में जो आपने कर्म किए हैं उसमें क्या समझ में आता है किसी को 8 साल के बच्चे को? 8 से 13 की कर्म से आपके 50 लाइफ टाइम का ये बन जाता है आगे का, नेक्स्ट 50 लाइफ टाइम्स का नींव बन जाती है लाइक दैट। व्हाट टू स्पीक ऑफ डे टू डे लाइफ। तो उनको पता नहीं है, जैसे तो उनका कर्म उनके मॉम डैड को, और उनका जो डिपेंडेंट्स रहते हैं उनको भी पार्टली मिलता है। डिपेंडेंट्स जो रहते हैं, जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है ना लीडरशिप पोजीशन में, उसको लेना ही पड़ता है सम पार्ट। So karma theory is like that. Yes. Just like a king gets 1/10 of the same from his Yes. public, from his so in the same way, how much parents get, like, Similar dependent. Yes. and what about the essence? Because they are dependent. They are not the ones who are doing it like that. But उनकी इच्छा थी इसलिए वो हो रहा है। अब समझ रहे, जैसे बच्चे जो है वो फॉर एग्जांपल नॉन वेजिटेरियन खाते हैं क्योंकि घर में था, तो कर्म तो लगता ही है उनको। बट वो थे क्यों, वो जन्म में, वो परिवार में क्यों जन्म लिया जहाँ पर किल करके खाते हैं? क्योंकि इनकी इच्छा थी ऐसे करने की। इसलिए आपको आपका जो जीवन का सिचुएशन है ना वो इस तरह से मिलता है क्योंकि आपकी इच्छा थी एक समय पर। अभी कोई बोलेगा अरे मेरी इच्छा सफरिंग की नहीं थी, मेरी इच्छा कोई ऐसा नहीं था कि मुझे गरीब नहीं बनना था, मुझे सफर नहीं करना था, फिर भी क्यों मिला? तो वो आपके भाग्य का फल है जो फल स्वरूप में मिल रहा है आपको, जो कर्म किए हैं उसके अनुसार। हम क्या होता है ना, हम सबको है ना अच्छी चीजें ही चाहिए, लेकिन हर चीज का दो पहलू होती है। तो यू गेट, दूसरा भी आपको मिलता है कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट। यू गेट, इट्स नॉट ओनली गुड। जो हम कर्म करते हैं उसका आपको बहुत भरपाई करना पड़ता है, दोनों साइड का है लाइक दैट। तो अज्ञान में जो करते हैं, सो इग्नोरेंस इज नॉट, जैसे अगर आप सिग्नल तोड़ो और वहां पर पुलिस खड़ा है तो वो तो आपको टिकट देगा ही ना, आप बोलो मुझे नहीं मालूम था। अगर गलती से नहीं मालूम था, नई जगह पर गए, तो उसमें गलती किसकी है? फाइनली आपकी है ना। नहीं मालूम था वो किसकी गलती है? वो आपकी गलती है। आपको पता होना चाहिए था, आपको ध्यान रखना चाहिए था। और अगर आप बोलेंगे ऐसे सिक्योर, आप अगर वो पुलिस, ट्रैफिक पुलिस को बोलेंगे कि मुझे मालूम नहीं था, अगली बार से नहीं होएगा, तो हाँ फाइन दो, अगली बार श्योरली नहीं करोगे। सो लाइक दैट ना, पनिशमेंट दिया क्यों जाता है? ताकि आप वैसा मिस्टेक, उसको मिस्टेक बोलते हैं, आप समझ रहे? तो ये सारी मिस्टेक अज्ञानता में ही होती है, इग्नोरेंस। ओके, अदर क्वेश्चंस? यस। आयुष नंबर मैं एक्चुअली जो बचपन से नॉलेज पसंद था, मेरे पैर में फोर्सफुली गिरा देते, तो मैंने तो फोर्सफुली खाया, तो उससे मुझे सीन लगेगा, मैंने खाने का मन नहीं था, मैं फोर्सफुली किया, तो ऑप्शन नहीं था। तो आप लगे देखिए अभी पुरानी बातें जो है ना, देखिए आप कर्माणि निरतहाति किंतु च भक्ति भाजाम। अब जब आप भक्ति योग में आते हैं, आप प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो फिर अभी जो है ना, आप नॉट ओनली आप अकर्म कर रहे हैं, मतलब अभी आपको आगे का रिएक्शन नहीं मिल रहा है, बट पूर्व जन्म के भी जो रिएक्शन है ना वो सब भी कट रहे हैं, पूर्व जन्म के भी कट रहे हैं सब। सो यू विल बी कर्मा फ्री, कर्मा फ्री इफ यू कंटिन्यू दिस प्रोसेस। देखिए आप थोड़ा कर लिया, जनरली हिंदू फिलोसफी में क्या करते हैं मालूम है? कि थोड़ा पुण्य कर लिया, फिर वापस पाप, फिर वापस वो पाप धोने के लिए कोई तीर्थ यात्रा कर दिया, फिर वापस पाप। वो क्रिश्चियन में भी यही करते हैं। वो क्या करते हैं मालूम है? संडे को जाकर वो कन्फेशन करते हैं, मास अटेंड करेंगे, फिर वापस मंडे टू सैटरडे वही पाप वाले इसमें, फिर वापस संडे को आकर फादर को बोलेंगे ये किया मैंने। तो क्या मतलब है इसका? परपेचुअल साइकिल हो जाता है। तो इसको कर्मा मिलता है, क्योंकि देखिए गलती जो होती है ना, गलती का मतलब क्या है? नहीं मालूम था और कुछ हो गया। फॉर एग्जाम्पल अभी ऐसे मैंने किया और ये गिर गया, तो इसको गलती बोलेंगे। अगर मैं जोर से ऐसे करूंगा और गिराऊंगा तो उसको गलती नहीं बोलते, जानबूझकर करते हैं। आप समझ रहे हैं ना? तो जानबूझकर करना, उसका रिएक्शन अलग होता है
और फिर गलती में पनिशमेंट मिलती है, जानबूझकर फिर हेवियर मिलता है। हम जब भी बच्चों का ट्रेनिंग करते हैं ना गुरुकुल में, तो हमें ना पहले उनको थोड़ा, जब भी वो फाइट करते हैं या कुछ झगड़ा होता है या आर्ग्यूमेंट होता है या कुछ गलत करते हैं, तो हम दोनों को पहले पूछते हैं कि उसका इंटेंशन क्या था, वो पता करते हैं। अगर छोटा मोटा इंटेंशन था, मतलब इंटेंशन नहीं था और जेन्युइनली गलती हो गया, तो फिर एक दूसरे को सॉरी बुलाकर प्रणाम करके फिर हो गया। लेकिन अगर किसी का इंटेंशन था मारने का, बुरा कर, तो उधर सस्पेंड करते उसको, क्योंकि जब तक इंटेंशन गलत है दूसरों के प्रति, तो ये तो हार्मफुल है ना, ये तो बुरा कर्म है। सो ये बहुत जरूरी है जानना कि इंटेंशन क्या होता है। तो अगर आपने इंटेंशनली नहीं किया है कुछ गलत, तो फिर वो बोलेंगे सस्ते में छूट गए, सस्ते में छूटेंगे। लेकिन अगर इंटेंशनली है तो फिर उसका पूरा भरपाई मिलता है विद इंटरेस्ट। सो इसलिए अभी जो है आगे अज्ञानता में बहुत सारी चीजें हम सबसे होती है, मोर इम्पोर्टेंट इज ज्ञान। इसलिए ये जो संस्था बनी है ना, ISKCON, इसके लिए इट्स एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आपको ज्ञान देने के लिए जो क्लास है, ये सब ज्ञान देने। अज्ञानता में होता है कि नहीं लोग, है ना, अज्ञानता में लोग मारते हैं, दूसरे जीवों को मारते हैं, दूसरों पर अत्याचार करते हैं, अज्ञानता में करते हैं। तो जितना ज्ञान बढ़ेगा तो फिर आप ये गलती करेंगे नहीं। तो ये जीवन का मकसद जो है वो आप सक्सेसफुल आप बन पाएंगे। सक्सेस कब मिलता है मालूम है जीवन में? कोई भी फील्ड में सक्सेस कब मिलता है जब उसके बारे में आपको जानकारी पूरी तरह से हो। जानकारी तब मिलती जब उसके बारे में आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब आपको। जैसे कोई बिजनेस वाला व्यक्ति है, अच्छा मालूम है, जैसे अंबानी है, अंबानी के जो बेटे हैं, धीरूभाई अंबानी के दोनों बेटे हैं, तो उसमें एक जो सबसे बड़ा मुकेश भाई है, वो बहुत सक्सेसफुल है ना, इतना बड़ा कारोबार है वगैरह। क्यों है पता है? कि बचपन से वो धंधा देख रहा है और फिर खुद का इंटेलिजेंस है। तो जब आप बहुत टाइम के लिए कोई भी चीज में एक्सपोज होते हैं ना, तो आपको बहुत, आपकी बुद्धि तेज हो जाती है, क्योंकि आप समझ जाते हैं इससे ऐसे होगा, इससे वो होगा, आप समझ जाते हैं पूरी चीज को। उसी तरह से जीवन और कर्म की जो गतिविधि है, ये सब समझने के लिए भी आपको ज्ञान चाहिए। ये जो है ना, ये भगवत गीता से प्राप्त होता है। तो अगर आप ये संग में रहते हैं, तो आप उसमें निपुण हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। So then now the solution is, जो पहले किया है वो जान दो, अभी उस पर चिंता मत करिए, लेकिन अभी आगे जो करना है उस पर फोकस करिए। Yes, other questions? Yes. मतलब मेरे इधर ऐसे बहुत से ऐसी फैमिली है जो खुद तो डिवोटी है पेरेंट्स लोग, लेकिन बच्चे पूरा मांसाहार है। और मैं पूछता हूँ कि ऐसा क्यों, आप तो मतलब कंटी धार्मिक हो, आप अच्छे से रह रहे हो, सब कैश पालन कर रहे हो, फिर आपके बच्चे मतलब मांसाहार है, तो बोलते कुछ नहीं कर सकते, बच्चे खाते खाने, तो उनके रिएक्शन पेरेंट्स को लगेगा? डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट है तो मतलब जैसे पेरेंट्स का पैसा लेकर अगर वो जाते हैं खरीदने के लिए, तो उनको लगता है, आप समझ रहे हैं? पेरेंट्स का पैसा लेकर जाकर खरीदते हैं, पेरेंट्स का फैसिलिटी यूज करते हैं कुछ करने के लिए, तो पेरेंट्स को लगेगा। इस तरह से रहता है। देखिए लीडरशिप पोजीशन ना छोटी बात नहीं है। आपको कर्म, आप जब भी, इसलिए तो बोला गुरु न सस्या जननी न सस्या नामोचयते समुपैते मृत्युम। नो पर्सन शुड नॉट बिकम अ फादर, अ मदर और अ गुरु और अ टीचर। ही शुड नॉट बिकम इफ ही कैन नॉट डिलीवर हिज डिपेंडेंट्स। मतलब अगर आप अपने जो आपके अंडर है, जैसे आपके बच्चे हो गए या आपके अंडर जो हो गए कुछ एम्प्लॉइज हो गए या स्टूडेंट्स हो गए, इन लोगों को आप अगर मृत्यु से आप बचा नहीं सकते, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप खुद फंसेंगे, दूसरों को फंसाएंगे, ये होएगा। इसलिए शास्त्र में ऐसे लिखा है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन, लीडरशिप इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोगों को उठाना है, गिराना नहीं है। अज्ञानता में कैसे उठाएंगे आप, समझ रहे ना? सो ऐसा है, इसलिए ये सब बहुत सीरियस मैटर होता है। इसलिए जो सीरियस पेरेंट्स जो है क्या करते, ट्राई करते हैं कि अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखें। प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। लीडर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है प्रोटेक्ट करना। जैसे अभी देखो तो मोदी सरकार है, ही इज अ स्ट्रॉन्ग लीडर, क्योंकि वो देखते हैं हम प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन आर्मी फेल्ड टू प्रोटेक्ट द टूरिस्ट एट पहलगाम, बट दे आर नॉट गोइंग टू रिपीट द सेम मिस्टेक। इसलिए उन्होंने क्या किया, फिर काउंटर स्ट्राइक किया ना पाकिस्तान में, है ना? तो ये तो धर्म है उनका, ये ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना। उसी तरह से पेरेंट्स का प्रोटेक्शन ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना बच्चों को, और हम सबका इस तरह से ड्यूटी होता है प्रोटेक्शन। हमारे जो अंदर होते हैं या जो हमारे इन्फ्लुएंस में है, उनको प्रोटेक्शन देना हम सबका धर्म है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमें मालूम हो धर्म क्या है, तभी हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। कई बार हमें ना, जैसे पेरेंट्स है, बच्चों को जाने देते हैं इधर उधर, और फिर वो गलत संगति में आकर गलत चीजें करते हैं, तो गलती किसका है?
पेरेंट्स का है, उनको उनका गलती हो जाता है, फिर वो बोलेंगे अरे हम क्या कर सकते हैं, ये वो बहुत कुछ कर, जब करना था तब किया नहीं, ऐसा है। दैट्स व्हाई यू नो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि डिपेंडेंट्स का जो लीडरशिप है रिस्पांसिबिलिटी वाला मैटर है। ओके यस तो जी मतलब मेरे काफी दोस्त हैं जो मतलब एथलेटिक्स से मतलब बड़े-बड़े एथलेटिक्स में कॉम्पीट करते हैं, तो उनको भी मोस्टली नॉन-वेज डाइट ही सजेस्ट किया जाता है, तो उनके लिए भी मतलब Karma is usually it's you see that video Karma Ghost, can you play it? Just search it on YouTube. There's no need to show it right now. You can just search it. Once it's ready, let me know. Yes, कर्मा तो बुरा लगता है सबको. कर्मा घोस्ट. कर्मा सबको लगता है. क्योंकि मैंने उनसे मतलब काफी लोगों से बात की है कि मतलब वेजिटेरियन की सब प्रेफर करते हैं और उनको बोलते हैं कि वेज और नॉन वेज जो बहुत फर्क है इसमें क्लास में प्रोटीन वेजिटेरियन में क्लास हो जाता है। See, आज की तारीख में तो आप ढूंढो कितने सारे वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स भी है, एथलीट्स है. इट्स नॉट, ये सब क्या होता है, कन्वीनियंस का होता है, मतलब मुझे करना है तो फिर मैं रीजन बना दूंगा, ऐसा है. यू रैशनलाइज व्हाट यू वांट टू डू, बराबर ना. जैसे अगर आपको यहाँ आना नहीं है तो आप कोई भी बहाना बनाकर नहीं आएंगे. जैसे अगर कोई डिवोटी ने फोन किया आपको कि संडे क्लास से आओ, तो बोलेंगे यार घर पे बीमार है, काम है, ये नहीं है, वो है. अगर आपको आना है, अगर घर पे भी ना बोला आपको नहीं आना है, तो भी आप उधर रीजन देकर आ जाएंगे, है कि नहीं. सो ये सब वैसी वाली बात है, ये दुनिया में सब ऐसे ही है, जिसको जो करना है वही करता है, रीजन अपने आप बनाता है. सो यहाँ हम ये सीखते हैं कि हमारी इच्छाओं को किस तरह से सही डायरेक्शन में हम लेकर जा सकते हैं. दैट्स व्हाट वी लर्न. सही डिजायर कैसे करें, ये पॉइंट है, क्योंकि वही हमारा इच्छा शक्ति है ना, हमारी शक्ति है, बाकी नहीं है. बाकी सब कर्म के अनुसार होता है. जन्म ईश्वर श्रुत श्री, वी डोंट चूज व्हिच फैमिली वी आर बोर्न इन, राइट. हम ये नहीं चूज करते हैं. कुछ हद तक हम ये भी नहीं चूज करते कितना पैसा कमाएंगे, कितना सक्सेस मिलेगा, पूरी तरह से नहीं चूज करते हैं. मेहनत सब करते हैं, लेकिन सब करोड़पति नहीं बनते हैं. सो हम चूज नहीं करते, हर चीज नहीं चूज करते जीवन में. जनो ऐश्वर्य, कितना ऑपुलेंस होगा. कुछ लोग ऐसे बॉर्न होते हैं, इनके ये लोग तो मतलब पैदा होते ही सिल्वर स्पून है, मतलब उनके पास गाड़ी, प्रॉपर्टी, सब कुछ उनके पहले से ही है. कुछ किया नहीं उन्होंने, किया है बाबा, पूर्व जन्म में किया है, इसलिए वो इस तरह से जन्म लेते. वैसी इच्छाओं के साथ, वैसे कर्मों के साथ. तो जन्म ईश्वर श्रुत, इवन नॉलेज, एजुकेशन भी है. कई लोगों को ज्ञान ज्यादा प्राप्त करने की इच्छा, सबको मिलता नहीं, लेकिन मौका. एंड श्री मतलब सुंदरता, किस तरह से हम दिखते हैं, हम ये नहीं चुनते हैं. हम सबको लगता है ये नहीं, ऐसा होता तो हम नहीं चुनते. कौन चुनता है? कर्म अनुसार, सब कर्म. तो आप समझ रहे हाउ कर्म इज सो पावरफुल. सो फ्री विल इज द ओनली थिंग वी हैव. तो ये फ्री विल को, इच्छा शक्ति किस तरह से राइट डायरेक्शन में लेके जाए, ये हम यहाँ सीखते हैं. You got it, Karma Ghost? Yeah, that's the one. How long is it? 4 minutes. Yeah. Can you play? ये आपके little understanding के लिए, कर्मा के लिए, और एक है इस तरह से कर्मा पीछा नहीं छोड़ता. आ गया, उसको लगाओ, सोच कर. Can you do go? Exit. You can go from the beginning. Yeah.
You've seen this one? You've seen this one? Okay, like that. देखा what goes around comes around. है ना, जैसी करनी वैसी as you sow, so shall you reap. Life, this is the truth, reality of life. अगर हम सब इक्वल है तो फिर सारे जीव सब इक्वल है, तो अगर हम किसी और के प्रति कुछ हानि करते हैं तो हम कैसे बचेंगे? फिर सिंपल है, राइट? सेंसिटिविटी इज अ वेरी क्रूशियल क्वालिटी दैट वी शुड डेवलप. सेंसिटिव तो होना ही चाहिए दूसरों के प्रति, कि जो हमने दूसरों के किया हमारे साथ होएगा ही वो, और जो हो रहा है वो भी इसलिए है क्योंकि हम एक टाइम पर जो चीजों में हम लोग जीवन में देखिए, कर्म का ये बड़ा लेसन है हमारे लिए. जो एरियाज में हमारे जीवन में हम सफर करते हैं ना, वो पूर्व जन्म में हमने किसी और के साथ वो किया था, इसलिए वो एरियाज में हमें हम्बल बनना पड़ता है कि पूर्व जन्म में हमने वो चीज किया था दूसरों के साथ. इस तरह से हमें समझना चाहिए और फिर क्या करना चाहिए, हम्बल रहकर आप काम करो तो फिर निकल जाता है. वो जो लेसन है उसके साथ अटैच्ड बुरे कर्मों के साथ, वो आप सीख लेते हो, गले उतार लेते हो, तो फिर यू कैन स्टिल गो ऑन विथ योर लाइफ. इट्स लाइक दैट. प्रारब्ध है, इस तरह से चलता है. ओके, अदर क्वेश्चंस? यस, लास्ट. संस्कार होता है पिताजी के द्वारा, बट अगर वो नरक में जाके वापस मनुष्य योनि में आ रहे तो वापस उनको संस्कार रिमेम्बर नहीं होते, वापस वो गलती करते हैं. तो ऐसा देखिए कैसा रहता है ना, जो संस्कार का मतलब ही है कि डीप इंप्रेशन होता है. आप समझ रहे हैं? हाँ, जनरली डजंट गो सो इजीली, डजंट गो. इमदाद नहीं चाहिए होगी. या पनिशमेंट इसलिए दी जाती है और वो इसलिए इंटेंस दी जाती है ताकि वो वापस जो है सो करने से पहले 2 बार सोचे. फिर भी चॉइस रहता है व्यक्ति के पास. जैसे कोई व्यक्ति जो कुछ स्टीलिंग करता है फॉर एग्जांपल, एक आदत से मजबूर हो जाता है ना, आदत से मजबूर हो जाते हैं लोग, तो कई बार पॉसिबल है कि जो संस्कार, गलती हैबिट का संस्कार इज स्ट्रॉन्गर देन द पनिशमेंट गिवन. ऐसा भी होता है. So then what has to be done? Then he will, if he still chooses to surrender to the bad habit, then उसका रिएक्शन मिलेगा उसको फिर. ऐसा रहता है. Choice is always there. आप समझ रहे हैं? Choice हमेशा रहता है. एक्चुअली ये आपको इंटेलिजेंस हम तभी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं जब भी हम डिवोटी के एसोसिएशन में, पर मटेरियल लाइफ में तो इट इज ऑलमोस्ट नामुमकिन. क्योंकि क्या रहता है ना, आप जो संघ में है, अभी सब लोग कुछ कर रहे हैं, सब अगर दारू पी रहे हैं तो आप हटके कैसे कुछ कर पाएंगे? नामुमकिन है, क्योंकि सब कर रहे हैं. दैट्स द कॉमन नॉर्म. अगर सब स्मोकिंग कर रहे हैं तो वो संघ में रहने के लिए आपको करना पड़ेगा वो सब चीज. यू नो, कॉलेजेस में वगैरह डॉर्म्स रहते हैं, हॉस्टल्स वगैरह में, उधर भी उनका इनिशिएशन होता है, दीक्षा होता है. कैसे होता है मालूम है? कुछ गलत काम करवा कर ऐसा होता है. वो करवाना पड़ता है, वो करवाते हैं वो, क्योंकि वो संघ वैसा है तो वो करना पड़ता है, लाइक दैट. सो उस तरह से है. आप कैसे बचेंगे ऐसा? सो बाय एसोसिएशन वन कैन कम आउट, अदरवाइज इज वेरी टफ. यस, अदर क्वेश्चंस? ऑलराइट. सो वृंदावन एंड मायापुर चंद्र, कैन वी हैव योर प्रेजेंटेशंस? वृंदावन, कैन यू कम हियर? अदर 2 brothers have done already, you can come. तो ये भी हमारे गुरुकुल है, गुरुकुल के छात्र. इन्होंने भी यही टॉपिक पर जो है कुछ गीता के ऊपर कुछ प्रेजेंटेशन है, तो सुनना चाहेंगे? हाँ, ऐसे बुक पकड़ सकते हैं, पहन लो. हाँ, वेरी गुड. ये इधर भी रख सकते हैं. चलो. Krishna, today I will be talking about the soul. Bhagavad Gita 2.23. Nayanam Chandani Sastrani Nayanam Dhanati Pavaka Nachena Kledan Drapo Nasho Shrati Maruta. The soul can never be cut to pieces by any weapon, nor burnt by fire, nor moistened
by water nor breathed by the wind. So in the shloka it says that the soul cannot be killed by anything, or any weapon or nothing. So this in the purport of Shiva says that the individual souls are eternally separated parts of the Supreme Soul because they are individual souls eternally. They are prone to be covered by the illusory energy and thus they become separated from the Lord. Similarly, the sparks of a fire, although one in quality with the fire, are prone to be extinguished when they get separated from the fire. Now there is a this is an example for the soul. Now there's a war happening about Pakistan versus India. If one Indian or Pakistan soldier thinks I will destroy the army there, and then he dies, but he's a soul, so the soul never dies, so the soul goes to the next body. And also, there's also a story of one person he had experience of once he was in a rickshaw and there was a big truck with rods going, and then one rod slipped and fell in him and pierced him, and then he was taken to the hospital. He was in pain and then he was unconscious, and then his soul came out of the body, and when he recovered, when he was unconscious, all the things the doctor they were talking about, he said, and then the doctor was like, how do you know the things that you were talking and when you were unconscious? And he said that he was out of his body, he was observing everything happening to his body, and then he came back. So this is a proof that the soul still exists and can never be killed. Any questions? No questions. Thank you. Hi, Puchandra, can you go? Very nice. I'll also be talking about the soul. 2.13 Day Australia Gade, Koma, Yovanam, as the abhorrent soul continuously passes through the body from childhood to youth to old age, the soul similarly passes into another body like that. A single person is not yet bewildered by that change. So, story. Once there was a person who was. Once there was a person who was a person named Kailash. He was very attached to his house. Once Narada came to his house and told him that he was going to Vaikuntha and told him if he wanted to come also. But the person said, I'm too busy in my household life. I can't come, I'll come later. So Narada Muni went. After some time he came again and then he said, are you ready now? But Kailash said that he wasn't because he had grandchildren. And then after some long time he came again. Then he heard that Kailash had passed away. So he saw one dog next to Kailash's house, Kailash's son's house. And the dog said to Narada that he was Kailash. And then Kailash said, how did he? Narada told, no, do you want to come now? But the dog said, no, because my
children are too lazy. They can't protect their money, so I have to guard the house. So after some time when he came back, he didn't see the dog, so he went behind in the grass, and then he saw some two snakes, and the snakes he saw a snake, and then the snake said, "I am Kailash." And then the Narada told, "Do you want to come now?" But he said, I'm not ready because my sons, they wake up very late. That's why all the elephants crush all the grass, so he can't come." So then Narada Muni called his sons and told there's a snake in the grass. And then the sons took a stick and started beating the snake. And then the snake tried to tell him that he is a Kailash, but he couldn't because he was a snake. So when he died, he remembered Narada Muni, and in his next life he became a devotee. Very well. ओके सो ये हमारे गुरुकुल बॉयज थे, तो ये सब बॉयज ने खुद जो है गीता पढ़कर और फिर सर्च करके स्टोरीज खुद उन्होंने सब बनाया था ताकि कुछ आपको प्रेजेंट कर सके। सो ये एक्चुअली कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है। 5 साल की उम्र से जो है ना ये सब ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो हम गुरुकुल में ये ट्राई करते हैं 5 साल की उम्र से जो है इस तरह से बॉयज को फिलोसॉफिकल ट्रेनिंग, क्योंकि यही तो असली ट्रेनिंग, बाकी स्किल्स वगैरह तो क्या है जीवन में कभी भी पकड़ सकते हैं आप। सो ये असली जीवन की जो सक्सेस है ना वो तो स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप तो आत्मा है, शरीर बदलता रहता है, यही जीवन में दिखता है। आप जब 5 साल की उम्र के थे तो ये ऐसे थोड़ी दिखते थे, अलग दिखते थे। पिक्चर्स में समझ में आता है आपको, है ना, पेरेंट्स के पास फोटोज रहती है वगैरह, हर कुछ साल में आपका बॉडी चेंज होता है, लेकिन आप तो सेम व्यक्ति है। सो देन लाइफ इज चेंजिंग, बॉडी इज चेंजिंग, यू आर द सेम पर्सन। सो हु आर यू? सो यू आर द सोल, सोल इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। सो ये हमें ज्ञान जो है भगवत गीता देती है। सो लेट्स शो आवर अप्रिसिएशन बाय एक बार आप राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर कृष्णदास, बलराम दास, वृंदावन दास एंड मायापुर चंद्रदास। So we'll have a few little time for questions and then we'll do कीर्तन। कीर्तन से एंड करेंगे। सो कुछ को प्रश्न है कोई भी, मतलब जस्ट जो हमने आज डिस्कशन किया उसके ऊपर नहीं, बट इन जनरल कुछ भी है तो आप पूछ सकते हैं। आपके साधना के रिलेटेड, भगवद गीता के रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन है तो जो पूछिए, बहुत अच्छे से आपको आंसर देंगे। यस। अभी मैं ऑफिस में जॉब करता हूँ, वहाँ पे माता जी सोती तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। जो भी हम लोग, ठीक है मेरा 16 माला होता है, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होती है, क्योंकि इतना क्लोज रहता है। मेरा सीट है, मेरे डिपार्टमेंट में ही है, तो मैं इससे किस तरह करूँ? हाँ, डिस्ट्रैक्शन ड्यू टू फीमेल्स, तो ये तो बहुत नेचुरल है और बहुत कॉमन है। बेस्ट थिंग ये है कि आप प्रॉपर अगर ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेते हैं, टेम्पल में रहते हैं आप, अगर आप यहाँ मंदिर में रहते हैं, आपको काफी स्ट्रेंथ मिलता है ये सब चीज फाइट करने का। वो एक चीज है, फाइट करने का स्ट्रेंथ मिलता है। सेकेंड है, प्रैक्टिकली स्पीकिंग हो सकता है तो आप बदल दीजिए जगह, क्योंकि अगर हमें मालूम है व्हाट इज इट, फायर एंड बटर प्रिंसिपल है। भागवतम बोलता है कि वुमन इज लाइक बटर, मैन इज लाइक बटर एंड वुमन इज लाइक फायर। तो ये साथ में मिक्स होकर ये इश्यू होता ही है। दूर रहना बेस्ट है। जब शादी हो जाता है तो फिर अलग है। आई एम मैरिड, आई हैव माय सन इज हियर, तो क्या है ना कि लाइफ इज डिफरेंट। वंस यू आर मैरिड देन यू आर लिटिल पीसफुल आल्सो।